सारांश। कवि ने इस कविता में प्रकृति का ऐसा वर्णन किया है कि लग रहा है कि प्रकृति सजीव हो उठी है। कवि कहता है कि वर्षा ऋतु में प्रकृति का रूप हर पल बदल रहा है। कभी वर्षा होती है तो कभी धूप निकल आती है। पर्वतों पर उगे हजारों फूल ऐसे लग रहे हैं जैसे पर्वतों की आंखें हो और वो इन आंखों के सहारे अपने आप को अपने चरणों में फैले दर्पण रूपी तालाब में देख रहे हों। पर्वतों से गिरते हुए झरने कल कल की मधुर आवाज कर रहे हैं जो नस नस को प्रसन्नता से भर रहे हैं। पर्वतों पर उगे हुए पेड़ शांत आकाश को ऐसे देख रहे हैं जैसे वो उसे छूना चाह रहे हों। बारिश के बाद मौसम ऐसा हो गया है कि घनी धुंध के कारण लग रहा है मानो पेड़ कहीं उड़ गए हों अर्थात गायब हो गए हों। चारों ओर धुआं होने के कारण लग रहा है कि तालाब में आग लग गई है। ऐसा लग रहा है कि ऐसे मौसम में इंद्र भी अपना बादल रूपी विमान लेकर इधर उधर जादू का खेल दिखता हुआ घूम रहा है। Summary: The poet has described nature in this poem in such a way that it seems as if nature has come alive. The poet says that the form of nature is changing every moment in the rainy season. Sometimes it rains and sometimes the sun comes out. Thousands of flowers growing on the mountains look as if the mountains have eyes, and with the help of these eyes they are looking at themselves in the mirror like ponds spread at their feet. The waterfalls falling from the mountains are making a sweet sound which is filling every vein with happiness. The trees growing on the mountains are looking at the calm sky as if they want to touch it. After the rain, the weather has become such that due to the dense fog it seems as if the trees have flown away, that is, have disappeared. Due to the smoke all around it seems as if the pond has caught fire. It seems that in such weather, Indra is also roaming around with his cloud-like plane, showing magic tricks. एक पावस ऋतु थी, पर्वत प्रदेश, पल पल परिवर्तित प्रकृतिवेश. This line describes the beauty of the mountainous regions during the rainy season. The poet says that in the mountains, the appearance of nature keeps changing moment by moment. यह पंक्ति वर्षा ऋतु के समय पर्वतीय क्षेत्रों के सौंदर्य का वर्णन करती है. कवि कहता है कि पर्वतों पर बारिश के मौसम में प्रकृति का रूप हर पल बदलता रहता है. दो मेखलाकार पर्वत अपार अपने सहस्र दृक् सुमन फाड़. This line describes the girdle-like formation and vastness of the mountains. The poet says that these immense mountains are opening their thousands of eye-like beautiful flowers, as if spreading the beauty of nature in every direction. यह पंक्ति पर्वतों की मेखलाकार, कटी पर गहनों की तरह बनावट और उनके विशाल रूप का वर्णन करती है. कवि कहता है कि ये विशाल पर्वत अपने हजारों नेत्रों जैसे सुंदर फूलों को खोल रहे हैं, मानो प्रकृति का सौंदर्य हर दिशा में बिखर रहा हो. तीन अवलोक रहा है बार बार नीचे जल में निज महाकार. दिस लाइन डिपिक्ट्स द माउंटेन्स सेल्फ एडमिरेशन एंड ग्रैंड्योर. The poet says that the mountain repeatedly gazes at its own colossal reflection in the water below, as if mesmerized by its own beauty. यह पंक्ति पर्वत की आत्ममुग्धता और उसकी विशालता का वर्णन करती है. कवि कहता है कि पर्वत बार बार नीचे जल, झील, नदी या तालाब में अपनी ही विशाल परछाई को देखकर मंत्रमुग्ध हो रहा है, जैसे वह अपने सौंदर्य का अवलोकन कर रहा हो. 4. जिसके चरणों में पला ताल दर्पण सा फैला है विशाल. This line highlights the relationship between the mountain and the nearby lake. The poet says that at the foot of the mountain lies a vast lake, which acts like a mirror reflecting its image. This lake enhances the grandeur and beauty of the mountain. यह पंक्ति पर्वत और उसके पास स्थित तालाब के संबंध को दर्शाती है. कवि कहता है कि पर्वत के चरणों में एक विशाल तालाब फैला हुआ है, जो दर्पण के समान उसकी छवि को प्रतिबिंबित करता है. यह तालाब पर्वत की भव्यता और सौंदर्य को और अधिक आकर्षक बनाता है. 5. गिरि का गौरव गाकर झरझर मद में नसंस उत्तेजित कर.
This line describes the beauty and impactful sound of waterfalls cascading from the mountains. The poet says that the waterfalls, with their constant gushing sound, sing the glory of the mountain. Their strong streams, almost intoxicating, excite and energize everyone. यह पंक्ति पर्वत से गिरते झरनों के सौंदर्य और उनकी प्रभावशाली ध्वनि का वर्णन करती है। कवि कहता है कि झरझर गिरते हुए झरने पर्वत के गौरव का गुणगान कर रहे हैं। उनकी तेज धारा, जैसे नशे में, हर किसी को उत्साहित और प्रभावित कर देती है। 6 मोती की लड़ियों से सुंदर झरते हैं झाग भरे निर्झर। दिस लाइन डिस्क्राइब्स द ब्यूटी ऑफ वाटरफॉल्स। द पोइट सेज दैट द वाटरफॉल्स रिजेंबल स्ट्रिंग्स ऑफ पर्ल्स, and the foam created by the falling water enhances the charm of the scene even more. यह पंक्ति झरनों की सुंदरता का वर्णन करती है। कवि कहता है कि झरने मोती की लड़ियों की तरह दिखते हैं और उनके गिरने से झाग बनते हैं जो दृश्य को और भी मनमोहक बना देते हैं। 7 गिरिवर के उर से उठकर उच्चाकांक्षाओं से तरुवर। This line describes the trees rising from the chest of the mountain and their aspirations. The poet says that these trees grow upwards from the lap of the mountain, as if driven by a strong desire to reach greater heights. यह पंक्ति पर्वत की छाती से उगते हुए वृक्षों और उनकी महत्वाकांक्षाओं का वर्णन करती है। कवि कहता है कि ये वृक्ष पर्वत की गोद से ऊपर उठते हैं और ऊंचाई की ओर बढ़ते हैं, मानो उनके भीतर ऊंचा उठने की तीव्र आकांक्षा हो। 8 हैं झांक रहे नीरव नभ पर अनिमेष अटल कुछ चिंता पर। दिस लाइन पोर्ट्रेज द डिमीनर ऑफ द ट्रीज ग्रोइंग ऑन द माउंटेन। The poet says that these trees gaze at the silent sky with an unwavering and steadfast look, as if they are immersed in deep thought or concern. यह पंक्ति उन वृक्षों की भावभंगिमा का वर्णन करती है जो पर्वत पर उगे हुए हैं। कवि कहता है कि ये वृक्ष शांत आकाश की ओर स्थिर और अटल दृष्टि से देख रहे हैं, मानो वे किसी गहरी चिंता में मग्न हों। 9 उड़ गया अचानक लो भूधर फड़का अपार पारद के पर। This line metaphorically describes the grandeur and power of the mountain. The poet says that it suddenly seems as if the massive mountain's mercury-like wings have fluttered, ready to take flight. This imagery conveys the mountain's dynamic energy and magnificence. यह पंक्ति पर्वत की विशालता और उसकी शक्ति का रूपक रूप में वर्णन करती है। कवि कहता है कि अचानक ऐसा प्रतीत होता है जैसे विशाल पर्वत के पारे पंख फड़फड़ा उठे हों और वह उड़ने के लिए तैयार हो गया हो। यह दृश्य पर्वत की गतिशीलता और अद्भुत ऊर्जा को व्यक्त करता है। 10 रवशेष रह गए हैं निर्झर, है टूट पड़ा भू पर अंबर। दिस लाइन डिस्क्राइब्स द awe-inspiring and grand sounds of nature. The poet says that the echoes of the waterfalls are gradually fading, and it feels as if the sky has collapsed onto the earth. This imagery captures the unmatched power and beauty of nature. यह पंक्ति प्रकृति की अद्भुत और भव्य ध्वनि का वर्णन करती है। कवि कहता है कि झरनों की गूंज अब धीरे धीरे समाप्त हो रही है और ऐसा प्रतीत होता है जैसे आकाश धरती पर टूटकर गिर पड़ा हो। यह दृश्य प्रकृति के शक्ति और सौंदर्य का अद्वितीय उदाहरण है। 11 धंस गए धरा में सभय शाल, उठ रहा धुआं जल गया ताल। दिस लाइन डिस्क्राइब्स डिस्ट्रक्शन इन नेचर। द पोइट सेज दैट द नोबल शैलोज हैव sunk into the earth, smoke is rising because of fire, and the lake has also burned. It reflects a situation of damage and crisis in nature. यह पंक्ति प्रकृति के विनाश और तबाही का वर्णन करती है। कवि कहता है कि सभ्य शाल के वृक्ष धरती में धंस गए हैं और जलने की वजह से धुआं उठ रहा है, साथ ही तालाब भी जल चुका है। यह प्रकृति के नुकसान और संकट की स्थिति को दर्शाता है। 12 यों जलदयान में विचर विचर था इंद्र खेलता इंद्रजाल।
This line describes the movement of clouds in the sky. The poet says that the clouds were moving swiftly here and there, as if Indra, the god of rain, was playing with his magical net, इंद्रजाल. यह पंक्ति आकाश में बादलों की गतिविधि का वर्णन करती है. कवि कहता है कि बादल तेजी से इधर-उधर घूम रहे थे और ऐसा लग रहा था मानो इंद्र, वृष्टि के देवता, अपने जादुई जाल, इंद्रजाल से खेल रहा हो. Dear students, if you find these Hindi lessons explained in English helpful, please share this video with your friends. Subscribe to our channel for simple and clear lesson explanations. Check the description for links to other lesson summaries and join our WhatsApp channel for daily Kannada and Hindi lessons, useful phrases and grammar tips. Start learning today and speak confidently.